Ma'am. So today we'll be covering chapter number, this chapter, adjective and the kinds. I hope everybody is attentive. You don't need your books right now, bete. Books can be kept with you, but no need to open them. I'll tell you if you need to open them. You just need to look at the board and listen to me. That's it. Right. So today's topic is adjective and the kinds. So before we begin the chapter, I'd like somebody, and I'll tell somebody to unmute himself and then tell me what adjectives are. Right. So let us begin with Saksham Soni. Saksham, please sit straight, bete. I always tell you. Saksham, please unmute yourself. Saksham Soni, unmute yourself, bete. Ma'am, yes. Anji, bete, do you know what are adjectives, Saksham? What Ma'am, are yes. adjectives? Anji, please speak up. मैम एडजेक्टिव जो नाउन की जगह लेते हैं नो वो कोई एक्शन बताते हैं मैम आप गेस कर रहे हैं या कीप ऑन you're just guessing. Yes. मैम मुझे पता है मैं ना भूल गया हूँ. Okay, fine, no issues. Mute yourself. Vanshika Vadva, unmute yourself. Ma'am, please camera try. Vanshika Vadva. Good morning, ma'am. Yes, better good afternoon. Yes, Vanshika. मैम एडजेक्टिव मैम जहाँ पर हम कुछ ऐड करते हैं. ऐड करते किसके साथ? मैम Okay, fine, mute yourself. मैम This way to bete, I'll not allow anyone, and you know that very well. So if you're unmuting yourself without permission, then just assume that I'll not ask you anything. Manraj, I can see the fan of your room. I can't see you. Yes, Girisha will unmute herself. Girisha, yes, beta, what are adjectives? मैम एडजेक्टिव्स मैम जो नाउन की कोई क्वालिटी या क्वालिटी बताते हैं. Very good. So adjectives are basically the describing words. They are the describing words. And whom do they describe? They describe some noun or a pronoun. तो किसी noun या pronoun की quality बताएं या किसी भी तरह से उसको describe करें, उसके meaning, उसके साथ कोई additional information दे उसके बारे में, those words are called the adjectives. I would like everybody to switch on the camera because maximum students have switched off the cameras. Right. So in class 5 we are having 8 kinds of adjectives, right? But today we'll be covering only 4, and then we'll move further, right, gradually. So let us start. Quickly write in the chat box what is the first kind of adjective that we usually do. In the chat box, everybody, quickly. First kind of adjective that we usually. कैमरा शायद ऑफ है. My camera is not off. I have joined from 2 different devices. Please, जो जहाँ पे सिर्फ श्रेय लिखा आ रहा है, you click on that. Pin my video where only. Okay, ma'am, I was pin the Shri full name. Okay, beta, okay, it's okay. Right, very good. So the first kind of adjective that you people have written, just give me a minute, is adjective of quality. Now, what is quality? What do you mean by the word quality? Quality means किसी की quality बताना कि वो कैसा है. Quality वाले words क्या describe करते हैं कि वो कैसी है चीज. Now, quality doesn't mean कि it has to be good only. कोई positive ही qualities नहीं होती, negative जो होती है किसी में कोई बुराई होती है, that is also quality. So it gives the answer of what kind. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होती है हम आंसर देते हैं ऑफ व्हाट काइंड का, किस तरह की है वो चीज. ठीक है. शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. सो कैसी है वो, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज शी इज ब्यूटीफुल. ठीक है. दिस इज एन एक्सपेंसिव गिफ्ट. ये गिफ्ट कैसा है, हाउ इज दिस गिफ्ट, व्हाट काइंड ऑफ गिफ्ट इज इट. इट इज एन एक्सपेंसिव गिफ्ट, ये कॉस्टली गिफ्ट है. इस तरह की बेटा प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड.
So इस तरह के जो words होते हैं जो किसी की quality बताएं, again I'm repeating, quality can be good also, it can be bad also, it can be positive, it can be negative. So any kind of quality, the words that tell us any kind of quality of what kind का जो answer देते हैं वो होते हैं adjectives of quality. Now when we are talking about adjective of quality जो है वो सेंटेंस में नाउन से पहले भी आ सकते हैं, नाउन के बाद भी आ सकते हैं. मींस वो एज अ सब्जेक्ट वाली प्लेस पे भी आ सकते हैं और प्रेडिकेट वाली प्लेस पे भी आ सकते हैं. सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इट इज ऐसा कुछ नहीं होता कि नाउन से पहले ही आना चाहिए. गर्विता सिट प्रॉपर्ली. ओके, सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होते हैं, गर्विता सिट प्रॉपर्ली. यस. So adjective of quality can be used either in before the noun or they can be used after the noun. ठीक है, right. Next, another important thing, जो adjective of quality होते हैं वो उनमें adjective को पहचानने का तरीका क्या है? उनके opposites होते हैं. Adjective of quality जो होते हैं they always have an adjective of quality always have an opposite. उनका opposite words मिलेंगे. जैसे for example, if I say is a good boy, तो मैं लिख सकती हूँ is a bad boy. इसका opposite लिख सकती हूँ. This is a costly pen. This is a cheap pen. So costly का opposite होगा cheap. So जो adjective of quality होते हैं, उन सबके opposites आपको हमेशा मिलेंगे. Except कौन से के नहीं मिलेंगे? If I say I have a red dress. What is the adjective here? Please quickly. I have a red dress. What is the adjective here? Saksham, sit straight every time. Sit straight. Backbone ko seedha karo apne. Yes. Red here is the adjective. Very good. And which kind of adjective is it? It is an adjective of quality. So यहाँ पे red जो है वो adjective of quality है. But क्या इसका opposite? But can we write the opposite of this? Red का कोई opposite लिख सकते हैं? No. Color का जो adjective of quality जो colors बताएं उसका opposite नहीं लिखा जा सकता, right? So इसमें हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो adjective of quality color बताती है उसका opposite नहीं हो सकता, बाकी सबके opposite होते हैं. Another thing, she has 2 pets. What is the adjective here? Quickly in the chat box, please. She has 2 pets. What is the adjective here? 2. Very good. So adjective यहाँ पे क्या है? 2 है. So इसका यहाँ पे भी हम 2 का भी opposite नहीं कर सकते, right? Okay. So main यहाँ पे हमने अभी red के बारे में बात की, color का opposite नहीं होता है. Clear? So अभी हमने एक cover किया है. First we have discussed the first kind, that is adjective of quality. Adjective of quality हमें किसी चीज की quality बताते हैं. वो क्वालिटी नेगेटिव क्वालिटी भी हो सकती है, पॉजिटिव क्वालिटी भी हो सकती है. वो हमें आंसर देते हैं किस क्वेश्चन का? ऑफ व्हाट काइंड. ठीक है, दिस इज अ प्रिटी ड्रेस. सो व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस इज इट? किस तरह की ड्रेस है? प्रिटी. सो प्रिटी वुड बी द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नाउ अनदर थिंग मैंने आपको बताई है कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं उसका, और इसको हम अभी यहाँ पे से रिमूव करेंगे. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होते हैं उनका हमेशा कोई ऑपोजिट होता है. जैसे दिस इज अ मैंने अभी आपको बताया, दिस इज अ ब्यूटीफुल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ अगली गर्ल, शी इज एन अगली गर्ल. सो ब्यूटीफुल का अगली हो सकता है. सो दैट वेज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज ऑलवेज हैव एन ऑपोजिट. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एडजेक्टिव एज अ कलर, कोई एडजेक्टिव कलर है उसका ऑपोजिट नहीं होता है. दिस मच इज क्लियर. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज क्लियर टू एवरीबडी? Fine, very good. Let us move further to the second kind. The second kind is adjective of, you can also write down in the chat box, what is the second kind? Adjective of, yes, very good. I have got the answer from a few. Yes, we can discuss any of them. So we'll just start with adjective of quantity. Now you need to be very clear. That was quality. So the spellings are different, of course, the pronunciation is also different. So this is adjective of quantity. Now we're talking about quantity. हम इसकी quality वो कैसा है कि बात नहीं करेंगे. अब हम बात करेंगे कि हम जिस भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जिस भी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, वो कितनी है. Now what we are going to ask? We are going to ask the question how much. So what question, इसमें क्या question बनता है? ये कौन से question का आंसर देता है? ये आंसर देता है how much का.
much. Now, अगर मैं कहूँ how many, can anybody tell me the difference between both the things? How much? एक मिनट, wait a minute. How much और how many, इन दो questions में क्या difference होगा? Very good. Girisha has given some answer. Very good. What about others? Akanksha, unmute yourself. Akanksha, unmute yourself, bete. Ma'am, yes. Yes, Akanksha, can you tell me how much और how many? इसमें क्या difference लग रहा है आपको? दोनों में कोई difference होता है? मैम how much मतलब कितना और how many मतलब ज्यादा. ना मैम वो भी कितना. मैम लेकिन ये क्वांटिटी हो गया. एडजेक्टिव ऑफ. कौन सा क्वांटिटी हो गया बेटा? How much. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. और how many? मैम how many. मैम एडजेक्टिव ऑफ नंबर. Very good, excellent. Okay, now this is the difference. अब हम दो adjectives एक साथ discuss कर सकते हैं. जब हमारा question answer दे रहा है how much, कितना है, लेकिन वो much word है. हिंदी में जब हम बोलते हैं how much, तो उसको भी बोलते हैं कितना है. अगर हम बोलते हैं how many, तब भी उसको बोलते हैं कितना है. ठीक है, तो हिंदी में अगर हम इन दोनों वर्ड्स को चेंज करके बोले तो दोनों का मीनिंग वर्ड सेम हो जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में डिफरेंट है. हाउ मच यूज होता है उन चीजों के लिए जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. सपोज आई सेंड यू द मार्केट, मैं आपको मार्केट भेज रही हैं और आपको कह रही हूँ कि जाओ थोड़ी सी शुगर लेके आओ. तो आप क्या शुगर लेने जब जाएंगे तो शॉपकीपर को क्या बोलेंगे? एक शुगर दे दो, दो शुगर दे दो, और यू विल से गिव मी सम शुगर, या केजीज में बोलेंगे, किलोग्राम से बोलेंगे ना. किलोग्राम्स को तो हम 1 to 3 बता सकते हैं, लेकिन शुगर के जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं उनको काउंट कर सकते हो? नो, शुगर के छोटे छोटे क्रिस्टल्स को हम काउंट नहीं करते हैं. ऐसे टी. मैम your voice is not audible. Ma'am, you are muted. No, I'm not muted. Is it fine now? Is it better? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Right. So मैं आपको बोल रही थी कि अगर आप शॉप पे शुगर लेने जाते हैं, टी लीव्स लेने जाते हैं, राइस लेने जाते हैं, तो आप बोलते हैं थोड़े से दे दो. थोड़े से दे दो मीन्स आप उनका नंबर नहीं बता सकते हैं, हम उनका वेट बता सकते हैं. सिमिलरली अगर आप शॉप पे मिल्क लेने जाते हैं तो आप कहेंगे कि 1 लीटर मिल्क दे दो. आप मिल्क अकेले मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, आप उसके लीटर्स को तो काउंट कर सकते हैं या उसके पैकेट्स को काउंट कर सकते हैं. लेकिन अगर आपने मिल्क लेना है तो अब सपोज आपने मम्मा से लेना है मिल्क, आप मम्मा को क्या कहते हो? गिव मी सम मिल्क, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो. अब वो जो थोड़ा सा दूध है उसको आप काउंट तो नहीं ना कर सकते, आप सिर्फ उसकी बात करते हो कि थोड़ा सा दे दो. जो इसका मतलब मिल्क काउंट नहीं हो सकता, शुगर काउंट नहीं हो सकती है. अगर सपोज आपके किसी डिजर्ट में शुगर कम है, चीनी आपको कम लग रही है, मम्मा कहते थोड़ी सी चीनी डाल दो. ये तो नहीं कहते 1 चीनी डाल दो, 2 चीनी डाल दो, बिकॉज यू कैन नॉट काउंट, क्योंकि आप काउंट नहीं कर सकते हैं. सो इस तरह की कोई भी चीज होगी जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसको आप वे कर सकते हैं. वे करना मतलब उसका वेट पता करना, उनको हम कहते हैं, उनको हम किस में कैलकुलेट करते हैं? हाउ मच में. और इस तरह की चीजें हमेशा किस में क्या बताती हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताती हैं. Whereas suppose I send you to market and I say कि bring 5 toffees. Now if I say bring 5 toffees, तो टॉफीज को आप काउंट कर सकते हैं. आप उसे बता सकते हैं मुझे 5 चाहिए, और वो जो शॉपकीपर है वो भी आपको काउंट करके देगा, उसका वेट तो नहीं करेगा. ठीक है. सो इसमें आप इस तरह की चीजें जैसे टॉफीज हो गई, चॉकलेट्स हो गए, एनीथिंग, बलून्स हो गए, इन चीजों को आप काउंट कर सकते हैं. और जिन चीजों को आप काउंट कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं हम काउंटेबल. क्या बोलते हैं? काउंटेबल. काउंटेबल मीन्स काउंट करने लायक, जिन्हें आप काउंट कर सके. सो जो चीजें काउंटेबल नाउन्स होती हैं उनके लिए जो वर्ड्स यूज होंगे वो होंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर. और जिन चीजों को आप काउंट नहीं कर सकते उन्हें हम बोलते हैं अनकाउंटेबल. इनको हम काउंटिंग नहीं कर सकते, इनके नंबर इसमें काउंटिंग नहीं हो सकती है. सो ऐसी चीजों को बोलते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन्स, और जिन्हें काउंट कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं हम काउंटेबल नाउन्स. राइट.
सो अभी हम इसको डिलीट करते हैं, इरेज करते हैं यहाँ से। अभी हम सिर्फ इसके बारे में विल टॉक अबाउट दिस, क्योंकि हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। सो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किनके लिए यूज होगा वर्ड? ऐसे नाउन्स के लिए जो कि काउंट नहीं हो सकते। जब हम ऐसे नाउन्स के बारे में बात करेंगे जो काउंट नहीं हो सकते और हम ये बताना चाहते हैं कि वो कितनी है चीज, तो हम उसे बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नाउ लेट अस सी, आई नीड सम सॉल्ट, मुझे थोड़ा सा नमक चाहिए। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? प्लीज आंसर नहीं लिखेंगे, पहले समझ लेंगे। आई विल टेल यू व्हेन यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। सो व्हाट इज द नाउन हियर? यहाँ नाउन हमारा है सॉल्ट। अब क्या सॉल्ट जो नाउन है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? सॉल्ट को, नमक को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, सो इट इज अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन हो गया ये? अनकाउंटेबल। सो जब अनकाउंटेबल नाउन और वो बता रहा है कि कितना चाहिए मुझे, हाउ मच सॉल्ट डू आई नीड, मुझे कितने सॉल्ट की जरूरत है? आई नीड सम सॉल्ट, थोड़ा सा चाहिए। अब ये सम वर्ड जो है वो मुझे बता रहा है कि मुझे कितना चाहिए, और जो चीज नहीं चाहिए वो क्या है? अनकाउंटेबल है। इसलिए यहाँ पे सम क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये उसकी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। नंबर नहीं हो सकता है क्योंकि सॉल्ट को हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ she ate the whole pizza. Bete, has anybody unmuted himself? Please mute yourself. My voice is echoing. Yes. So she ate the whole pizza. Now, what is the noun here? Pizza. Pizza noun hai. Can anybody tell me what is the adjective here and why? What is the adjective? The kind. Write your answers. Yes. Very good. Whole here is the adjective. That is correct. That is correct. Absolutely. What kind of adjective is it? Yes. Let me see. Yes, of course, it is adjective of quantity. It is adjective of quantity. But why? Pizza तो काउंट हो सकता है. Pizza 1, Pizza 2, pizzas ये तो काउंट हो सकते हैं. Hanji, who will tell me the answer? Explain it to me. Write your name in the chat box. Okay, Anurit, unmute yourself and explain it to me. मैम Yes. मैम वो होल मैम उसको बता रहा है मैम, उसने सारा पिज्जा खाया है. Very good. Okay. Anybody else who can explain it much like better than her? You are correct. उसने मतलब कि उसने वो पिज्जा के बारे में बता रहा है, उसने कितना खाया है. You are correct, Anurit. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटे. Who else can explain this? Who is with the name unknown here? Switch on your camera, please. Who is this with the name unknown? Beta, switch on your camera or I'll remove you. Hanji, who else can explain this thing? Jashan, unmute yourself. Good afternoon, ma'am. Yes, beta, good afternoon. Ma'am, now here it is the adjective of quantity. Ma'am, now in adjective of quantity, we know that it tells how much. In adjective of number, it tells how many. Now here, ma'am, in the sentence, we know that it is how much, that they are telling us, the sentence is telling us that how much, because the statement is she ate the whole pizza. Now whole
here is how much, that she ate the whole pizza. Now it Okay, fine, Jasmine, fine. Okay, mute yourself. Okay, now look at this sentence that I've written on the board. I've written she ate 2 pizzas. She ate 2 pizzas. What is the adjective here and what is the kind? Quickly write in the chat box. Then we'll discuss both. Ma'am, may I? This way to Bitesh, I'll definitely let you speak. Yes. 2 and they were saying 2 here is number. Very good. So here in this sentence, in the previous one, whole was the adjective. In this sentence, 2 is the adjective. You said that whole is adjective of quantity, whereas in this sentence, 2 is adjective of number. Can anybody tell me why? How? दोनों में ही हम पिज्जा के यूज कर रहे हैं. Then what is the difference between the two? Better stop playing, whosoever it is. Stop it. Ma'am, because whole is used for quantity. Who is this? Ekam? Was it Ekam? Ma'am, Pushpinder. Okay, Pushpinder, right. Now listen to me carefully, everybody. If I say she ate the whole pizza, यहाँ पे हमारे पास पिज्जा सिर्फ एक था. उस पिज्जा को डिस्ट्रीब्यूट किया. जब हम किसी एक चीज को डिस्ट्रीब्यूट बांट के देते हैं किसी को, ठीक है, then we use adjective of quantity, right? लेकिन सेकंड सेंटेंस है she ate 2 pizzas. अब यहाँ पे पिज्जाज 2 हैं. नंबर पिज्जा को तो हम काउंट कर सकते हैं, 1 पिज्जा 2 पिज्जा. लेकिन अगर एक ही पिज्जा को मैं कह रही हूँ मुझे थोड़ा सा दे दो, ठीक है, गिव मी सम पिज्जा, तो सम यहाँ पे कर जाएगा क्योंकि पिज्जा की एक बाइट मांग रही हूँ मैं. उसको आप मेजर उसको आप काउंट नहीं कर पा रहे. थोड़ा सा दे दो मीन्स आपकी मर्जी. आप थोड़ा सा इतना भी दे दो, मुझे इतना भी दे सकते हो, राइट. सो यहाँ पे अगर हमें बस एक चीज को हम बांट रहे हैं किसी को, ठीक है, तो वहां पे वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है. जैसे मैं यहाँ पे सेंटेंस है शी एट द होल पिज्जा, उसने सारा का सारा पिज्जा खा लिया, ठीक है. सो होल मीन सारा का सारा. यहाँ पे होल वुड बी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. बट इफ आई से सपोज आई गिव यू अनदर सेंटेंस, अगर मैं बोलती हूँ शी गेव मी 2 pieces ऑफ पिज्जा, शी गेव मी 2 pieces ऑफ पिज्जा. सो अब ये बताओ मुझे यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव है. शी gave me 2 pieces of pizza. Now tell me what is the adjective here and why. Okay, it's adjective of number. Why? Yes, Parneet, unmute yourself and tell me why is it adjective of number. Better unmute yourself. Vedansh, okay, you do it. Vedansh, unmute yourself. Good afternoon, ma'am. Yes, beta. मैम 2 एडजेक्टिव ऑफ नंबर है मैम, क्योंकि मैम हम उसको काउंट कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे 2 एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. यू आर करेक्ट. वाई? क्योंकि वो पिज्जा के लिए हाँ यूज हो रहा है, पीसेस के लिए यूज. पीस जो है यहाँ पे नाउन है. आप किसी भी चीज के पीस जब करते हैं उसको काउंट कर सकते हैं. 1 पीस 2 पीस 3 पीस 4 पीस. जब आप किसी चीज के पीसेस करते हैं तो पीसेस काउंटेबल नाउन है. यहाँ पे हम 2 वर्ड जो है वो पीसेस के लिए यूज हो रहा है, पिज्जा के लिए नहीं हो रहा. शी गेव मी 2 pieces ऑफ पिज्जा, उसने मुझे 2 पीसेस दिए. 2 पीसेस दिए. अगर मैं इतना बोलूँ शी गेव मी 2 pieces, तब भी आप इसे 2 को क्या लेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर लेंगे, क्योंकि वो पीसेस के बारे में बात हो रहा है. तो पीस तो जब हम पीसेस करते हैं उनको तो हम काउंट कर ही सकते हैं. सो दैट्स व्हाई 2 यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा. वेयर एज होल, हाफ, सम, ये सारे वर्ड्स का होते हैं. These will come under adjective of quantity, right? लास्ट सेंटेंस में हमारा पिज्जा का नंबर इस डायरेक्टली बात कर रहे हैं वो, इसीलिए वहां पे भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाए. बेटा somebody is unmuting himself and my voice has been echoed. Please make sure everybody is muted.
I have logged in from 2 devices, but that doesn't mean कि मेरी voice record. So is this much clear to everybody? Adjective of quantity and adjective of quality. This is clear to everyone. And third, adjective of number भी clear हो गया होगा. Right? So we have covered the 3: adjective of quality, adjective of quantity, and adjective of number. Is it clear? Quickly show me thumbs if it is clear to everybody. And if anybody is having any doubt, you can quickly ask, and then we'll move to the fourth one. Yes, thumbs please. I'm looking at you and I can't. Jatin, is it clear to you? Jatin, unmute yourself. Is it clear to you? But you didn't raise your thumb. You didn't show me a thumb. How would I come to know whether it is clear to you or not? Yes. Should we move further, Bete? Should we talk about the fourth one? Excuse me, ma'am. Yes, yes. Ma'am, many people believe on God. Ma'am, believe in God. Ma'am, उसको हम number में लेंगे, adjective of number. अच्छा चलो आप very good. I am happy that you are asking question. Now tell me what is the noun here? किसके लिए many word use हो रहा है? Money. Ma'am, people. People को count कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? Ma'am, yes. Yes. So it is a कर सकते हैं. कर सकते हैं ना. हमने ये देखना है कि वो किस noun के लिए use हो रहा है. अगर और फिर ये देखना है कि क्या उस noun को हम count कर सकते हैं. ठीक है? So यहाँ many people है. So people word is countable. So many will be adjective of number. जहाँ पर अभी Clear बेटे? Okay, ma'am. Okay. Now if I say some boys are playing in the park, everybody listen carefully. Some boys are playing in the park. तो यहाँ पे some word क्या है? जल्दी से quickly write to me which kind of adjective is it? Some boys are playing in the park. Who is pasting this? Yes, your answer is correct. Manraj will unmute and tell me. Kavish Sharma, what have you pasted here? What did you paste in the chat box, Kavish? Yes, ma'am. What have you pasted in the chat box? Ma'am, I am Manraj. No, I'm asking Kavish. Okay, Manraj, आप बताइए चलिए मुझे. Why some here is adjective of number? Why not quantity? Excuse me, ma'am. Ma'am, अगर आपने बोला some boys are playing in a park, मैम हम boys को count कर सकते हैं. मैम जो हम count कर सकते हैं उसको हम adjective of number की. Yes, very good Manraj, very good. अब देखिए some word को देख के ये कई बच्चे ना learn कर लेते हैं कि some word जो है वो क्या होगा, adjective of quantity होगा. No, it is not true. आपको ये देखना होता है कि वो किसके लिए यूज हो रहा है. जैसे some यहाँ पे boys के लिए यूज हो रहा है और आप boys को काउंट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे adjective of number हो जाएगा. लेकिन अगर मैं बोलूं give me some sugar, फिर वहां पे वो क्या जाता? Yes, give me some sugar. अब यहाँ पे some word sugar के लिए यूज हो रहा है. So in that case it would be adjective of quantity. Clear? Same word adjective of number भी हो सकता है और quantity भी हो सकता है. आपको decide करना कैसे है ये देख के कि वो किसके लिए यूज हो रहा है. Clear to everyone? Should we move to the fourth one, last one for today? Sorry. So the last one that we're going to do today is adjective or demonstrative adjective. Demonstrative adjective. This also we have done so many times. Who is going to tell me? Yes, who will tell me? Krishang is, are you there in the class? Krishang is there in the class? No? Okay, Jabji. Jabji, unmute yourself. Yes, ma'am. Beta, do you know what are demonstrative adjectives? Yes, ma'am.
हाँ जी, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? मैम जो डैड, दोज, दीज, मैम उनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं मैम, पर प्रोनाउंस भी होते हैं ये। अगर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स ना किसी की नाउन की बात करें, नाउन के बाद आ रहे हैं, नाउन के पहले आ रहे हैं, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होंगे। अगर प्रोनाउन के पहले आ रहे हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होंगे। वेरी गुड, प्रोनाउन से पहले नहीं, प्रोनाउन से नहीं, वर्ब से पहले आ रहे हैं। you're right, Jabji, it's correct. Please look at the board, everyone. So before we talk about demonstrative adjective, demonstrate करना होता है किसी की तरफ point out करना, कि कोई चीज दिखाना। So suppose मैंने किसी चीज की तरफ point out करना है, तो मैं कैसे क्या word use करूंगी? Suppose मैंने अपनी watch दिखानी है आपको, तो मैं क्या बोलूंगी? Oh, this is my watch. So मैंने इसकी तरफ point out करने के लिए क्या word use किया अपनी watch के लिए? This, right? अगर मैं बोलती हूँ कि that board is not clean, मैं उसकी तरफ पॉइंट आउट करूँ, मैं वो बोर्ड जो है वो क्लीन नहीं है, ठीक है। सो मैंने इस बोर्ड की तरफ, दूर है मेरे से, मैंने इसकी तरफ पॉइंट आउट करने के लिए क्या वर्ड यूज किया? दैट वर्ड यूज किया। सिमिलरली अगर मैं किसी प्लूरल के बारे में बात करूं, दो चीजों के बारे में, ठीक है, तो मैं क्या यूज करूंगी? सपोज आई से आई हैव गॉट 2 बुक्स इन माय हैंड्स, मेरे पास 2 बुक्स होंगी, तो मैं बोलूंगी दीज आर माय बुक्स, ये मेरी बुक्स हैं। सो मैंने अपनी बुक्स को दिखाने के लिए क्या वर्ड यूज किया? क्योंकि 1 से ज्यादा है तो दिस की जगह क्या बन जाएगा? दीज बन जाएगा, राइट? अगर मैं बोलती हूँ दोज विंडोज आर नॉट क्लीन, मेरे पास मेरे से थोड़ी सी दूर 2 विंडोज हैं, तो मैं उनके लिए क्या वर्ड यूज करती हूँ? दोज। सो हम कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं किसी की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए? दिस, दैट, दिस और दैट सिंगुलर एक चीज के लिए यूज होता है। दीज, जब एक से ज्यादा चीज मेरे पास होगी तो मैं दीज यूज करूंगी, और मुझसे दूर होंगी तो दोज। सो ये कौन से वर्ड्स हो गए? दिस, दैट, दो, दीज, दोज। सच, मैं बोलती हूँ आई डोंट लाइक सच पीपल, ठीक है। बाहर सपोज मैं कहीं, हम कहीं बाहर रोड पे खड़े हैं और कुछ लोग वहां पे बहुत शोर मचा रहे हैं, तो मैं अपनी फ्रेंड को बोल रही हूँ आई डोंट लाइक सच पीपल, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। कैसे लोग पसंद नहीं है? किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रही हूँ? मैं उन लोगों की तरफ पॉइंट आउट कर रही हूँ जो वहां पे शोर मचा रहे हैं। दैट मीन्स सच वर्ड भी मैं क्या यूज कर रही हूँ? किसी की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए यूज कर रही हूँ, किसी के बारे में, किसी की तरफ इशारा करने के लिए यूज कर रही हूँ। सो ये 5 वर्ड्स आपने याद रखने हैं हमेशा, दिस, दैट, दीज, दोज, सच। सो ये वर्ड्स होते हैं ऐसे वर्ड्स जो हम किसी की तरफ पॉइंट आउट, किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दीज वर्ड्स आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। इन्हें हम क्या नाम देंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स का नाम देंगे, ठीक है। अब ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव, मैं इन्हें एडजेक्टिव्स क्यों नहीं बोल रही हूँ सीधा? मैं इसलिए इन्हें एडजेक्टिव्स नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ये वाले जो वर्ड्स हैं 5, ये कई बार डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं सेंटेंस में, लेकिन कुछ सेंटेंसेस में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी बन जाते हैं, इसीलिए मैंने इनको अभी क्या नाम दिया? सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का नाम दिया। अगर मैं बोलती हूँ दिस ड्रेस इज प्रीटी, सो यहाँ पे दिस डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, लेकिन क्या इसके पीछे नाउन आ रहा है? यस, इसके पीछे नाउन आ रहा है। हमारा कौन सा नाउन आ रहा है? ड्रेस। सो अगर हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद एग्जैक्टली बाद नाउन आ रहा होगा तो वो हमारा क्या बन जाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। लेकिन सपोज मैं बोलती हूँ दिस इज अ प्रीटी ड्रेस, अब दिस वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, लेकिन क्या इसके बाद इसके बाद नाउन आ रहा है? नो, इसके बाद नाउन नहीं आ रहा है, इसके बाद वर्ब आ रहा है। सो इस केस में ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं बनेगा। सो दिस यू हैव टू टेक केयर। ये वर्ड्स तो यही वाले 5 है, लेकिन अगर हमारे सेंटेंस में इसके पीछे नाउन आएगा तो ही हम इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लिखेंगे। अगर इसके बाद नाउन नहीं आएगा, वर्ब आएगा, तो हम इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लिखते हैं, राइट? विल टेक सम मोर एग्जांपल। I say such people are crazy. सच वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, मुझे पता है, लेकिन अब मैं चेक करूंगी कि इसका नेक्स्ट वाला वर्ड क्या है। इसका नेक्स्ट वाला वर्ड नाउन है, पीपल वर्ड नाउन है, इसका मतलब ये मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर मैं बोलूंगी सपोज मैंने लिखा सच आर माय फ्रेंड्स,
सच वर्ड तो डेमोस्ट्रेटिव वर्ड है, लेकिन इसके बाद आर आ रहा है, आर इज नॉट अ नाउन, तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है। So this you have to be clear of कि डेमोस्ट्रेटिव वर्ड सेम होते हैं, वही वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव भी बन सकते हैं और वही वर्ड हमारे प्रोनाउन भी बन सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव्स वो कब बनते हैं? when we have a noun after that word. Excuse me, ma'am. Yes बेटे। Ma'am, due to